स्केलेटन दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। दिख रहा है ना? ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? स्कैपुला, हाउ द स्कैपुला विल बी ज्वाइंड विद द ट्रंक? क्या ज्वाइंट बोलेंगे उसको? याद करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जब आर्थोलॉजी में, सिंसारकोसिस। सिंसारकोसिस बताया था ना? मैम याद आ रहा है सिंसारकोसिस? यस मैम। Sinsarcosis is the union, it is the joint between the muscle. Okay. Actually, there is no joint between the scapula and ribs. In case of cattle, in case of animals, here the clavicle and coracoid bone. Coracoid bone is in the form of process, coracoid process, rudimentary, and clavicle is absent. So that this is the axial, the appendicular skeleton, means the forelimb is not articulated with axial skeleton. जैसे हमारे में क्या है, हमारे में clavicle sternum के साथ जाके मिलती है, so there it will bound with the sternum, so that there is support in case of human being. But in case of animal, as scapula is the only bone and it is not articulating with any part of axial skeleton, so how it will be suspended? It will be suspended by the muscles of sinsarcosis. Okay? And what are the sinsarcosis muscles? Muscles of shoulder girdle region are the sinsarcosis muscle. जब आप पढ़ोगे shoulder girdle region की muscles, तब आप पढ़ोगे कि the part of the muscle is attached with the scapula as well as with the trunk. So this is how that the scapula is attached with the trunk, and that union is called sinsarcosis, right? The next joint is the shoulder joint. Next joint is shoulder joint, and shoulder joint is formed between the glenoid cavity of scapula and head of humerus. This joint मैं आप लोगों को बताऊंगी. और fresh condition, in fresh condition this joint is have only capsular ligament. याद करो, मैंने ligament बताया था आपको. This joint has the capsular ligament. ठीक है? So capsular ligament क्या है? Capsular ligament, it is a wrapping around the synovial cavity. ठीक है? And याद करो, बताया था मैंने, capsular ligament is the outer fibrous membrane of what? पढ़ते नहीं हो, joint capsule. ठीक है? पढ़ाई भी करना जरूरी है. जब पढ़ोगे नहीं, एक तो ऑलरेडी चीजें इतनी डिस्टर्ब है, फिर आप लोग खुद से फोकस नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा. पढ़ना तो पड़ेगा. सो हियर दिस जॉइंट इज व्हाट? विच जॉइंट? बोलो कौन सा जॉइंट है ये? शोल्डर जॉइंट. Shoulder joint. Shoulder joint is formed between the head of humerus and glenoid cavity of the scapula. There is no ligament other than capsular ligament in this joint. ठीक है? Then next joint is elbow joint. Elbow joint is formed between the radius ulna and humeroradial. देखो, कुछ ज्वाइंट्स होते हैं जो कंपोजिट ज्वाइंट्स होते हैं, कुछ ज्वाइंट्स होते हैं सिंपल, कुछ होते हैं कंपोजिट. सिंपल ज्वाइंट मतलब only two bones are taking part in formation of that joint, and composite joint means two or more type of joints are involved in that particular type of joint. ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ज्वाइंट किसके बीच में बनेगा? रेडियस और अल्ना के बीच में बनेगा, रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन. और दूसरा ज्वाइंट बनेगा ह्यूमरस और रेडियस के बीच में. ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड ह्यूमरोरेडियल आर्टिकुलेशन. सो हियर इज प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरोरेडियल आर्टिकुलेशन एंड रेडियो अल्नार आर्टिकुलेशन. अब ये किस टाइप का ज्वाइंट बना? विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज दिस? कौन सा है? हिंज है, बॉल एंड सॉकेट है, प्लेन है, कौन सा ज्वाइंट है? बताओ. एल्बो ज्वाइंट.
Hinge joint. Hinge joint. Hinge joint, very good. Elbow joint is example of hinge joint, that is also called gingimus. Hinge joint और gingimus. ठीक. अब इसमें क्या है? Here is the presence of collateral ligament. Collateral ligament का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड दिख रहा है कि आप लोगों की नहीं दिख रहा है? ये एल्बो ज्वाइंट दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा No, मैम। ma'am. नो मैम नहीं नहीं दिख दिख No, रहा। ma'am. ठीक है, मैम थोड़ा नीचे चलिए तो कैमरा. हाँ, मतलब आप मैम लोग कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए. कैमरा नीचे रखेंगे तो या तो स्टूल से नीचे आएगा ना, ऐसे करेंगे। अब इधर दिख रहा होगा, है ना? यस मैम. यस मैम. यस रहा मैम है, दिख है रहा ना? है। ये Yes, ma'am. दिस ज्वाइंट इज व्हिच ज्वाइंट? एल्बो ज्वाइंट। फिर इसके बाद कौन सा ज्वाइंट आएगा? ये कार्पल। आफ्टर एल्बो ज्वाइंट व्हिच ज्वाइंट इज देयर? क्या और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अनदर टर्म? नी जॉइंट। नी Joint. ज्वाइंट। फिर इसके बाद कौन सा ज्वाइंट होगा नी ज्वाइंट के बाद? दिस वन। सैडल जॉइंट। पैटलॉक हाँ बोलो कौन सा? पैटलॉक जॉइंट Padlock joint. पेटलॉक ज्वाइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट इज पेटलॉक ज्वाइंट। पेटलॉक के बाद पेस्टर्न पेस्टर्न। किसके बीच में? फर्स्ट एंड सेकंड फैलेंक्स फर्स्ट एंड सेकंड फिलिंग्स, वेरी गुड। देन आफ्टर पेस्टर्न द नेक्स्ट ज्वाइंट इज कॉफिन कॉफिन ज्वाइंट। क्यों बोलते हैं कॉफिन? कॉफिन क्यों बोलते हैं? मैम क्योंकि कॉफ में प्रेजेंट नहीं होती वो। क्या होती है? कॉफ में प्रेजेंट नहीं होती वो। कॉफ में प्रेजेंट नहीं होती है। यस। कॉफिन वो होता है ना मैम, क्रिश्चियन लोग उसमें डेड बॉडी रखते हैं। हाँ, कॉफिन किसको बोलते हैं? इसमें डेड बॉडी को रखते हैं, है ना? क्रिश्चियन में रहता है ना वो कॉफिन, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेड बॉडी को रख के वो जमीन में बरी करेंगे, है ना? एक्चुअली दिस जॉइंट इज एनक्लोज्ड बाय द हूफ। ये जॉइंट आपको बाहर से नहीं दिखेगा, जब आप हूफ को निकालेंगे तब आपको ये जॉइंट दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉफिन जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? अलग अलग लिगामेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट लिगामेंट्स ऑफ डिफरेंट ज्वाइंट। ये तो अभी केवल आपने नेमिंग की, दीज आर द ज्वाइंट्स। फिर इसके बाद आपको सबका टाइप पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर द टाइप एंड व्हाट आर द लिगामेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट। ठीक है, तो ये जो है आपको यहां पर हम देखें ह्यूमरो-रेडियल आर्टिकुलेशन, दिस इज ह्यूमरस एंड रेडियस। ज्वाइंट इज फॉर्मिंग बिटवीन द कंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड रेडियस, facets ऑफ रेडियस। कोलेटरल लिगामेंट क्या होते हैं? लेटरल टर्म यूज हुआ है ना, कोलेटरल मतलब दोनों साइड। हियर देयर विल बी the ligament will extend from humerus to the proximal extremity of radius like this। जैसे आप सिलते हो ना, एक चीज से दूसरी चीज सिलते हो जोड़ने के लिए उसको, तो कोलेटरल लिगामेंट इज आल्सो these avoid the lateral disturbance of joint। मतलब ये फिक्स करके रखेंगे कोलेटरल लिगामेंट इस तरफ से और उस तरफ से। मीडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट आर टर्म्ड। लेटरल कोलेटरल मींस इस तरफ, मीडियल कोलेटरल मतलब उस तरफ। कोई भी जब दो चीजों को आप सिलोगे तो ये उसके जो एंड है, दोनों एंड को क्या करोगे? आपस में यूनाइट करोगे ना। ठीक है, सो कोलेटरल लिगामेंट इज लाइक दिस, दे ज्वाइन द डिस्टल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल बोन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट बोन। ठीक है, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, राइट? तो ये जो मीडियल कोलेटरल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हैं, they will be present in all hinge type of articulation। यहां भी मिलेगा, कार्पल में भी मिलेगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल में भी मिलेगा। ठीक है, सो ऑल टाइप काइंड ऑफ these hinge type of joint they have the collateral type of ligament। फिर in addition to that there will be the different ligament in different joints।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम चलते हैं जॉइंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब। जॉइंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब, एनीवन, कोई बता सकता है? वो बोलो भाई, जॉइंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब, नेम ऑफ जॉइंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब। बोलो भाई। हिप जॉइंट, स्टाइपल जॉइंट, हिप जॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, हिप जॉइंट। Ilium, ischium, pubis, pelvic girdle is there, and this here the head of femur. Head of femur is lodging in the acetabulum. Hip joint, ठीक। फिर इसके बाद स्टिफल जॉइंट, स्टाइफल ज्वाइंट, बिल्कुल सही, स्टाइफल ज्वाइंट, ठीक है। स्टाइफल ज्वाइंट इज आल्सो कंपोजिट ज्वाइंट। It is also a composite joint. The joint is formed between the femur and patella. One articulation that is called femoro-patellar articulation, and second articulation is between the tibia and femur. So femoro-tibial articulation, femoro-patellar articulation, then femoro-tibial articulation, right? Then next joint, the next name of next joint, क्या बोलेंगे अगली ज्वाइंट को? हॉक जॉइंट, हॉक ज्वाइंट, हॉक जॉइंट, ठीक है, हॉक ज्वाइंट। तो हमारी जो एड़ी है वो एनिमल का क्या है? हॉक ज्वाइंट है। हमारा जो हम अपना एंकल देखते हैं ना, एंकल, दिस इज हॉक ज्वाइंट, दिस इज व्हाट? हॉक ज्वाइंट। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड कैल्केनियल ट्यूबर, दिस इज कॉल्ड कैल्केनियल ट्यूबर, ठीक है। तो हियर दिस वन इज द हॉक ज्वाइंट, दिस इज कैल्केनियल ट्यूबर। जो हमारा हम अपनी एडी देखते हैं ना, सो दिस जॉइंट रिप्रेजेंट दैट आर्टिकुलेशन, तो दिस इज कॉल्ड हॉक ज्वाइंट।